Hello candidates, I welcome you all to the study squad and today we'll be discussing your SSB interview questions, okay? So आपका जब SSB interview होता है, so there the interviewing officer asks you a series of questions which we have basically divided into 3 CIQs, okay? 3 major CIQs and आज हम वही discuss करेंगे, okay? So let's move forward. फर्स्टली जो आपका पहला CIQ होता है दैट इज मोस्टली अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओके एंड वट एवर यू हैव डन ओके. और जैसे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही आस्क यू द क्वेश्चन आई विल बी आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन द सेम वे सो दैट आपको वो थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए ओके. सो ही आस्क यू अ पैरा ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सारे स्टार्टिंग से एंड तक, ये ही वो एक टाइम पर ही रिपीट करते हैं एंड देन ही गिव्स यू टाइम सो दैट यू आंसर ओके. सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द क्वेश्चंस और आपको इसी वे में आंसर करने होते हैं, ठीक है. सो इट्स बेटर यू प्रिपेयर इट फ्रॉम होम एंड देयर इट गेट्स ईजियर फॉर यू ओके. सो दिस इज हाउ ही आस्क यू. So firstly he'll start with, suppose you tell me about your educational qualification, okay, starting from class 10th onwards working up to your present level of education. I would be interested in knowing about your percentages scored in various examinations, the subjects chosen after class 10th for further studies and also your future career options, okay. Talk about your participation in extracurricular and co-curricular activities including games and sports and so on. Special achievements if any. I would also like to know about the teacher you liked the most and those who did not impress you. Okay, mention about friend circle you have moved with while at school and college or hostel. Tell me about your close friends and why do you consider them so. Also friends who did not impress you much. And if you have any difficulties in financing your education and things like that, okay. So he'll say this entire paragraph, he'll give you time and then you have to answer. So इस पूरे paragraph को we'll break down, ठीक है. We'll break down. Firstly, he asked you about your education starting from class 10th onwards, working your way upwards to the level of present education. ठीक है, class 10 से आप start करोगे and then अगर आपने graduation कर रखी है तो you will tell about till graduation. अगर आपने masters कर रखी है then you will tell about masters as well. Okay. Then they ask you about the percentage scored. Percentage, mostly he's interested in your 10th percentage, 12th percentage and your grad and post grad percentage. Okay. ठीक है, इन्हीं की परसेंटेज में ही इज इंटरेस्टेड. दो ही हैज द मार्कशीट्स बट ही वांट्स टू नो फ्रॉम यू ओके. द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव चोजन आफ्टर क्लास 10th, ठीक है, और फर्दर स्टडीज के लिए. क्लास 10th में आपके पास एक बहुत ज़्यादा दे गिव यू अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स राइट नाउ, ठीक है. लाइक देयर इज कंप्यूटर, देयर इज इकोनॉमिक्स ओके, लाइक दैट सो ऑन. तो आपने क्लास 10th में क्या चूज करा, 12th में अगर यू नो यू हैव टेकन साइंस से, यू हैव टेकन PCM, देन why, firstly they want to know what, okay, आपने क्या choose किया. And then the question that is more important is why here, okay. So why is because they want to know कि आपने ये वाला जो subject choose किया है वो क्यों choose किया है, ठीक है. What was your thinking behind that, ठीक है. ये काफ़ी important है जो आपको explain करना होता है, ठीक है. अगर say you have done engineering, okay, so अगर आपने engineering करी है, say CS में करी है या mechanical में करी है for instance, or even if you have done it in aeronautical or aerospace, okay, then आपने ये क्यों चूज किया, ठीक है. what was the thing that you know drove you towards them, passion था, whatever you thought about it, ठीक है. ये सब important है, he wants to know, so you should have the reason for it also, okay. Then your future career option, this also holds importance, ठीक है. future career option में आप SSB देने जा रहे हो, आपको पता है कि you want to join the forces here, okay, but see right now if I say okay, if you're going for AFSB, ठीक है, just for instance, ठीक है. so इसमें बहुत ज़्यादा आपकी branches हैं, ठीक है, कि लाइक देयर इज लॉजिस्टिक्स, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, देयर इज फ्लाइंग ब्रांच इज ऑल्सो देयर इज टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ, ठीक है, ये सब ब्रांचेस भी हैं, ठीक है. तो यू शुड बी नोइंग, ठीक है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. फोर्सेस ज्वाइन करनी है और वहाँ पे जाके इस डिपार्टमेंट में काम करना है, ये काम करना है, ठीक है. लाइक दैट यू शुड बी नोइंग. सी इफ ठीक है, अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो तो आप टेक्निकल के लिए करोगे, ठीक है. अगर आपको फ्लाइंग में इंटरेस्ट है तो आप फ्लाइंग के लिए कर रहे हो, ठीक है. तो ये है आपका फ्यूचर,
Okay, then you should be knowing, ठीक है, then he is asked you about your participation in extra curricular and co curricular activities. ठीक है, और पहले देखो स्पोर्ट्स के बारे में बताओगे आप इसमें. ठीक है, स्पोर्ट्स में आपने किस में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भी पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी यू हैव टू टेल हिम. ठीक है, और आपका जो को करिकुलर है ये क्या होता है, जो भी आपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ रहे हो कोर्स के रिलेटेड, उसमें आपने एक्स्ट्रा क्या किया है. ठीक है, लाइक यू हैव अटेंडेड सेमिनार्स. ओके, ठीक है, और यू आर पार्ट ऑफ सम क्लब्स, और यू हैव अटेंडेड और पार्टिसिपेटेड इन टेक फेस्ट. ओके, ये सब आपको मेंशन करने हैं, आपको बताने हैं. ठीक है, स्पेशल अचीवमेंट हो सकती है आपके स्पोर्ट्स में से, यू प्लेड एट स्टेट लेवल और यू प्लेड एट कॉलेज पे भी अगर आपने खेला है या स्कूल में भी खेला है, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट इफ योर टीम हैज वन समथिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपका कोई डिपार्टमेंट है, से कोई क्लब है. ठीक है, सो देयर यू पार्टिसिपेटेड और पार्टिसिपेटेड एज वेल, प्लस यू हेल्ड अ पोजिशन देयर. ठीक है, कोई अपने ऑफिस होल्ड किया है. ठीक है, कि यू वर द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी ऑफ दैट क्लब, लेट्स से. ठीक है, ये सब भी आपके स्पेशल अचीवमेंट्स होते हैं. अगर आपका कुछ आप टॉपर हो, ठीक है, टॉपर हो तो भी स्पेशल अचीवमेंट है वो भी. ठीक है, देन ही आस्क्ड यू अबाउट द टीचर दैट यू लाइक द मोस्ट. ठीक है, and the one who did not impress you. It says did not impress you, it did not say that you hate him, so there should not be anything negative here. ठीक है, टीचर दैट लाइक यू नो मोस्ट, यू शुड बी नोइंग द नेम. कोई सा भी हो सकता है, आपके स्कूल से हो सकता है, आपके कॉलेज से भी हो सकता है. ठीक है, and it's not just name, you should also be knowing why he influenced you or why you like him. ठीक है, so उन्होंने कुछ आपको इन्फ्लुएंस किया होगा तभी तो you like him. सो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड द पर्सन हु डिड नॉट इम्प्रेस यू शुड बी नोइंग उसका भी रीजन, सबकी रीजन आपको पता होने चाहिए. खुद से ही बता देना, अदरवाइज ही लास्ट यू. ठीक है, फ्रेंड सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सो फ्रेंड सर्कल आपका, ठीक है, इसमें आप ना ये याद रखना 6 से 7 फ्रेंड्स तो बिल्कुल ऐसे याद रख के जाना. वैसे याद ही होते हैं बट जो मतलब टॉप प्रायोरिटी पे होंगे आपके. ठीक है, उसमें से आपके कोई टॉप के 2 फ्रेंड्स होंगे जिसके बारे में आपको ही विल आस्क यू ऑल्सो. 6-7 नाम तो आप उसको बोल ही देना कि ठीक है मेरे फ्रेंड सर्कल में हाँ आई हैव बीन फ्रेंड्स विद दिस पर्सन. ओके, देन ही विल से ओके चलो 2 या 3 के बारे में बता दो. ठीक है, तो आप टॉप के 2 या 3 के बारे में बता देना, एंड उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ. ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए. एंड ही माइट ऑल्सो आस्क यू कि आपने लास्ट इनसे कब बात करी थी यार. ठीक है, व्हेन डिड यू टॉक टू हिम लास्ट और मेट him her. Okay, so it should be don't say कि हाँ भाई I met this person 2 weeks ago or something like that. Don't mention a person like that. Mention a person that you have met just before the SSB, or ठीक है you told him before coming to the SSB, someone like that. And he also asked you about the person you did not, or the friend who did not impress you. So you should be knowing that friend also. ठीक है, आप उसका नाम और whatever thing that did not impress you, you should be knowing that. ठीक है, इसका भी आप रीजन प्रिपेयर करके जाना. हैंड टू हैंड में भी नहीं हो आपसे, ठीक है, तो डू इट. Then he asked you if you had any financing issue. ठीक है, while your education. ठीक है, so maybe maybe you had, maybe you did not have. Okay, so अगर जिसका है he can tell okay ठीक है I took a loan, or or for helping that I took tuitions, or to help my parents, something like that. ठीक है, or helped him doing something like that, like I participated in a lot of competitions, and there I got like cashbacks as prizes, so that also helped me. Anything that is there, you are free to answer that. Okay, मूविंग फॉरवर्ड वील मूव टू द सेकेंड CIQ अपना. ठीक है, सेकेंड आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका फैमिली से रिलेटेड होता है. ठीक है, आफ्टर दैट देखो जब आपको फर्स्ट CIQ खत्म हो जाएगा ना, ही ऑल्सो क्रॉस क्वेश्चन यू अबाउट सर्टेन थिंग्स, सो उनके लिए भी बी प्रिपेयर्ड. देन आपका आ जाएगा सेकेंड CIQ अबाउट योर फैमिली. ओके, सो दिस इज हाउ ही इज गोना आस्क यू. ओके, that gives me a good idea about your education and other related activities. Okay, now I will be interested in knowing about your family. Tell me about your parents and other family members like brothers, sisters and grandparents, and their education and occupation, how you spend time together. I would also like to know about the general activities at home, the one which you get personally involved.
who do you approach for help when you have a problem or you want to confide in? If you have any friend in your neighborhood, how do you spend time with them and in what activities? How much pocket money do you get and how do you spend it? If not, how do you meet your monetary requirements? Okay, so now he has asked you these many questions. Okay, so let's just break them down. Okay, so firstly he asked you about your parents and other family members, that are brother, sister or grandparents, and their education and occupation. So basically what he wants to know, अच्छा आपके पेरेंट्स के बारे में बताओगे आप, ठीक है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ब्रदर है, सिस्टर है, कितने हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको बताना है, ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी, दे विल टेल देम अबाउट कि उनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, प्रेजेंटली दे आर वर्किंग और दे आर रिटायर्ड और वट एवर. ओके, दैट यू हैव टू आंसर है, ठीक है. हाउ डू यू स्पेंड टाइम टुगेदर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है आप जैसे भी अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू हैव टू आंसर दैट ऑल्सो. डोंट स्किप दीज लिटिल इन्फॉर्मेशन. ओके, then the general activities at home, the one which you get personally involved, ठीक है, जो भी activities होती है जिनमें you take part in, okay, ठीक है, so that you have to tell him. okay, ये सबकी बहुत वेरी कर सकती है, so therefore I am not giving you any examples also here. ठीक है, अप्रोच फॉर हेल्प व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, किसको आप अप्रोच करते हो, ठीक है, तो इसमें आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इफ यू हैव एल्डर ब्रदर और सिस्टर, उसको आप अप्रोच करते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स में से किसको अप्रोच करते हो. जिसको भी अप्रोच करते हो, क्यों अप्रोच करते हो, यू शुड बी नोइंग कि ठीक है वाई आई अप्रोच हिम, ठीक है, एंड यू कुड दे माइट ऑल्सो आस्क यू अ प्रॉब्लम, अ रीसेंट प्रॉब्लम वेयर यू अप्रोच्ड देम, ठीक है. सो आपको एक प्रॉब्लम भी मतलब होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगी आपके पास में, ठीक है. सो यू कुड रिकॉल इट एंड राइट इट, ओके, आई हैड सम इशू रिलेटेड टू दैट एंड माई मदर हेल्प मी, गिविंग मी दिस सजेशन और वट एवर इट वॉज. ओके, लाइक दैट. नेबरहुड फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है. उन्होंने पहले वाले फ्रेंड्स के बारे में पूछ लिया, आपके हॉस्टल स्कूल वगैरह के बारे में पूछ लिया है, कॉलेज के. अब उन्होंने नेबरहुड फ्रेंड्स, ठीक है, दीज आर द पीपल दैट यू ग्रो अप विद, नेबरहुड फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग से आप उन्हीं के साथ हो, ठीक है. तो अब आपका कैसा बॉन्ड है उनके साथ, ठीक है. माइट बी कि सम ऑफ यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग टुगेदर, सो आप नोट्स वगैरह शेयर करते हो, या मतलब ठीक है, या जो भी जैसे भी आपका उनके साथ बॉन्ड है, ठीक है. मे बी मोस्ट ऑफ देम हैव मूव्ड अवे बट यू स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम, ठीक है. जब आते हैं तब मिल लेते हैं, सबके सब होम टाउन में जब वापस आते हैं तो मिल लेते हैं, सिंपल, ठीक है. देन उसके बाद में ही आस्क्ड यू अबाउट योर पॉकेट मनी दैट यू गेट, ठीक है. सम पीपल माइट बी गेटिंग पॉकेट मनी, सम माइट नॉट बी गेटिंग पॉकेट मनी, ठीक है. तो कितनी मिलती है ये पता होना चाहिए जिन लोगों को मिल रही है, ठीक है, और कैसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, हाउ आर यू स्पेंडिंग दैट मनी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कितनी मिलती है, कैसे स्पेंड करते हो, सेव क्या करते हो, ठीक है. और जिनको नहीं मिलती है वो कैसे मीट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपने एक्सपेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है, कि हमारे ये एक्सपेंस होते हैं, हमारे मंथली ये एक्सपेंस है, ठीक है. मंथली अगर यू से कि मंथली नॉर्मल एक्सपेंस भी आपका, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंस सबसे बेसिक क्या होता है, आपका रिचार्ज होता है एक फोन में, ठीक है, वो कितना कराते हो, उसमें कितना स्पेंड करते हो, व्हेन यू गो आउट समवेयर, ठीक है, ठीक है, व्हेन यू गो आउट विद समबडी, उस टाइम कम्यूट करते हो अगर आप डेली, तो उसमें कितना स्पेंड करते हो, ठीक है, फूड पे कितना स्पेंड कर रहे हो, ये सब चीजें, ठीक है. सो नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड CIQ. ओके, सो दिस वन इज रिलेटेड टू योर हॉबीज एंड योर स्पेयर टाइम. ओके, सो नाउ दिस इज हाउ ही इज गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन. ओके, I have got a fair idea about your family and other related matters. Let's now talk about your hobbies, spare time activities and other interests. I am interested in knowing about your hobbies, leisure time activities and reading habits, etc. What do you like to watch on TV? And if you have facilities to access internet, how do you make use of them? Also tell me about your routine on a working day and on a holiday. Okay, so firstly I'll tell you one thing. This is how he's gonna ask you. He might combine CIQ2, okay, CIQ2 plus CIQ3, okay, he might do that also, ठीक है. So don't be no panic कि okay different है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, आपको questions पता होने चाहिए, ठीक है. So अब इसके breakdown पे आ जाते हैं, ठीक है. पहले he asked you about your hobbies, जो spare time में you do it,
ठीक है, स्पेयर टाइम में आपके एक्टिविटीज और इंटरेस्ट, ठीक है। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस इन हॉबीज एंड इंटरेस्ट पहले ही एक वीडियो में, सो आई गेस वो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो मेक श्योर आप अपनी हॉबीज की लिस्ट और इंटरेस्ट की लिस्ट पहले से ही बना के जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, और कैसे टाइम स्पेंड करते हो उन पे, ठीक है। रीडिंग हैबिट्स, अगर इफ यू रीड बुक्स, then you should be prepared with a list of at least 10 books, okay, 10 books and something about them also, you know, not something, I could say, जैसे थोड़ा सा preface type होता है ना, ठीक है, about those books की थोड़ी सी summary आपको पता होनी चाहिए about those 10 books. He might ask you, ठीक है, not just the name but a little bit more about themselves. If you have a habit of reading the newspaper, ठीक है, तो वो आपसे definitely news पूछेंगे, ठीक है। और इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, देन यू शुड बी नोइंग कि ठीक है, आई रीड द हिंदू एवरी डे, ओके। सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। सो देयर यू कुड गेट द न्यूज़, ठीक है। सो से यू से कि वी आर रीडिंग द हिंदू एवरी डे, सो ही माइट आस्क यू न्यूज़ रिलेटेड टू दैट रिसेंटली वॉट एवर हैपन, ओके, ठीक है। Then watch TV. If you watch TV, I guess most of the people don't right now, okay. So if you watch TV, what kind of shows that you watch, okay. So अब TV तो आपके बेसिकली OTT के स्ट्रीमिंग के ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम लोग देखते हैं, तो कौन से शोज देखते हो, किस टाइप के शोज देखते हो, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वॉच देम, ठीक है। इफ़ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, हाउ आर यू यूजिंग देम, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हो, यू हेल्प, यू नो, यू कुड गिव एन नंबर ऑफ यू नो आंसर्स है कि ठीक है, इट हेल्प्स मी इन माई एजुकेशन, मैं लेक्चर स्ट्रीम करते हैं, या फिर ठीक है NPTEL के कोर्सेज ले रहे हो आप, ठीक है, अगर आपकी ग्रेड खत्म हो गई है स्टिल, यू नो, उसके बाद में भी या बीच में भी यू आर टेकिंग NPTEL कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। So this is how you do it, ठीक है। Access to internet में there could be, you know, some YouTube channels that you follow, some good YouTube channels, तो you know if they are good ones you could name them also, ठीक है। So like that, okay। रूटीन आपका जो होगा ऑन अ वर्किंग डे, ऑन अ एवरीडे बेसिस, और अगर हॉलीडे पे डिफरेंट होता है, यू नो, ही माइट आस्क यू सिर्फ हॉलीडे का और एवरीडे का, इट यू नो डिपेंड्स, ठीक है। So you should be knowing कि okay, I wake up at this time, then I do this, that, and you know this is how I end my day, ठीक है, something like that, basic, but you know he might ask you, so prepare for it, ठीक है। Now I'll just give you, you know, a little bit of tips regarding this, ठीक है। Firstly, before all these CIQs, he might ask you a couple of questions, okay, 3 to 4 questions, just to make you feel at ease, ठीक है। अच्छा, यू ट्रैवल्ड फ्रॉम दिस मच प्लेस, ओके, ठीक है, अगर आप दूर से ट्रैवल करके आए हो, ठीक है। सो यू नो हाउ डिड यू ट्रैवल एंड हाउ वाज योर स्टे, ही माइट आस्क यू नॉर्मली, ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस, ओके, ओके, द प्लेस वेयर यू आर फ्रॉम, ठीक है। ही माइट आस्क यू द, यू नो, द टूरिस्ट अट्रैक्शंस फ्रॉम देयर, सो अपने जगह की जहाँ के आप हो उसकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीज़। और यू नो हाउ डू यू नो स्पेंड योर टाइम एट योर होम टाउन, वॉट ऑल थिंग्स डू यू इंडल्ज इन, ठीक है, कि अगर आप प्लेसेस को यहाँ पे घूमते हो, या यू नो यू लाइक टू ईट और समथिंग, योर फूड या समथिंग, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दे माइट बी वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। देन यू नो आई सजेस्ट यू समथिंग कि जैसे ब्रेक डाउन हुआ है ना, इसी वे में यू नो आई सजेस्ट यू टेक अ पेज, write the first CIQ, the entire CIQ, okay, like the exact all of it, and then जो break down करके उसके questions है ना, उन सब के आप आंसर ना यहाँ पे write down करने शुरू कर दो, ठीक है, धीरे धीरे, यू नो, सो दैट आपका ये पूरा इंटरव्यू का कवर हो जाए, ठीक है। और यू नो लीव एक्स्ट्रा स्पेस सो दैट इफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कम अप, ठीक है। इट्स वेरी हेल्पफुल इफ यू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, इफ यू हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, इफ यू आर 2 or 3 people who are preparing for SSB who have that interview, you know, they can interview each other, that's very helpful, so I'll suggest you to do that, okay। If you have any queries or feedback regarding the video, please make sure to mention it in the comment section, and if you like the video, make sure to like the video and subscribe to the channel. Thank you for watching it, and I wish you all the best for your SSB.